guys, welcome back to my channel. If you're new here, I hope you will consider subscribing. Today's guest with me is Shahab Niazi. She is the founder of Trailblazer and the co-founder of Startup Guide. So, Assalamu alaikum, Shahab. How are you? Assalamualaikum. I'm good. How are you? Thank you so much for having me. It's such a Thank you pleasure. for being here. Thank you for taking the time out. Acha, Shahab, we're going to start out by asking you कि ट्रेल ब्लेजर क्या है, स्टार्टअप गाइड क्या है, क्या होता है उसके अंदर, क्या करती हैं आप काम? When I started Trailblazer, the idea was completely different and it has evolved over time, quite a few times. But basically, it started out as a company which does consulting for content production, content curation, and social media strategy, right? And some trainings, because I was doing little of that at that time. But over the last, I think, 2 years, it has, especially during 2020, it has evolved a lot because I've been associated with a lot of organizations as a trainer, kind of feeling the need for training related to entrepreneurship, related to marketing, related to social media. So I thought that I'll sort of, kind of pivot it and focus more on making it as an organization that works on, like learning and development. Whether it's for people who want to start their businesses, whether it's for people who want to grow their businesses, or whether it's even people who want to, like for example, improve their communication skills to be a better professional. All the different services that I was basically providing, I still am in the process of actually converting that into, like a more learning and development kind of training kind of a focus than a service kind of focus. I still do services, of course, but very, very limited, only because they're very customized. So only for people whose vision sort of aligns in terms of the work that is required, but not like those kind of solutions which are just happening by the number, by a larger quantity. So let me So yeah, so stop you, that's Shahab. yes. Sorry. Let me just stop you for a second. And जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती, मैं उनके लिए All right. ज़रा ट्रांसलेट Okay. करना चाह रही हूँ कि आप जो हैं ट्रेल ब्लेज़र जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है और सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो क्या सर्विसेज़ आप दोबारा से हमें बता सकती हैं, क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं आप? सो सर्विसेज जो हैं वो ये है कि अगर फर्ज करें कि किसी का सोशल मीडिया अच्छा नहीं चल रहा, राइट? कोई छोटा बिजनेस है, स्पेशली बिकॉज उनके पास बजट भी कम होता है और रिसोर्सेज भी कम होती हैं, और उनको आई थिंक एजुकेशन की भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल होती इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कोर्सेज वगैरह। तो सो बेसिकली एक तो सोशल मीडिया अगर आपने अपना बेहतर करना है, उससे रिलेटेड सर्विसेज, बट अब वो मैंने बहुत लिमिटेड काइंड ऑफ कर दिया है। बट उसके अलावा जो है वो, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अपना वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है, अगर किसी ने कोई न्यूज़लेटर का मतलब कंटेंट लिखवाना है, चाहे प्रिंट हो चाहे ऑनलाइन हो, अम, अगर किसी ने सोशल मीडिया कैप्शंस लिखवानी है, तो इस तरह ये मतलब शुरू हुआ था। आई मेरे पास मेरी जो है राइटिंग वो सर्विसेज़। सोशल मीडिया एजेंसी। Yes. So it was a social media agency, primarily speaking, right? But I kind of evolved it into a more, learning kind of a training based type का चीज, जो कि organizations के साथ भी काम करती हूँ जिसमें मैं, और जिसमें जो है वो मैं इंडिविजुअल्स के साथ भी जो है वो काम करती हूँ डिफरेंट तरीकों से। Great. And tell us about Startup Guide. You're a co-founder of Startup Guide. क्या है Startup Guide? सो स्टार्टअप गाइड जो है वो एक मैगजीन है, जो कि मंथली मैगजीन है, ऑनलाइन आता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, बेसिकली ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो यहाँ रहते हो चाहे वो कहीं बाहर रहते हो, उनकी स्टोरीज फीचर करते हैं इंस्पायर करने के लिए और लोगों को कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसके अलावा सेकंड पार्ट ये है कि अगर आपने उसमें जो है वो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं कि हाउ टू डू दिस, मतलब ये चीज कैसे करनी है, अगर आपने अपनी मार्केटिंग बेहतर करनी है तो कैसे करनी है, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करानी है तो आप कैसे करेंगे। अम, तो इस तरह की कैसे वाले जो स्टेप्स हैं थोड़े से वो, और उसके अलावा जो है वो बेसिकली हाईलाइट करते हैं और स्टोरीज लोगों की जर्नीज के थ्रू, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो सीख जाते हैं चीजें
probably बहुत सारे ऐसे सवाल होते होंगे उनके माइंड में जो किसी का इंटरव्यू पढ़ के शायद उनको थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती हो, या थोड़ा जो है वो उनके स्टेप्स थोड़े probably रिफाइन हो जाते होंगे. So जबरदस्त, startup guide, in like very few words, that is what it does. जबरदस्त, वेरी नाइस शाहब, इट्स वेरी गुड टू नो हाउ टैलेंटेड यू आर। अब ये कि बेसिकली ये जो एंटरप्रेन्योर्स की सीरीज मैंने की है, इसका मकसद जो है ना वो ये है कि जो औरतें ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, अपना काम कर रही हैं और सक्सेसफुल हैं, वो उन अपनी स्टोरीज़ आके बताएँ, अपनी जर्नी आके बताएँ हमें। अपना करियर कैसे वो यहाँ तक पहुँची, अ, ताकि जो लड़कियाँ अभी पढ़ रही हैं या जो औरतें घर पे बैठी हैं और वो सोच रही हैं कि वो कैसे अपना काम शुरू कर सकती हैं, उनको इतनी पता नहीं है कि बाहर निकल के और लोग सक्सीड कर रही हैं औरतें। तो उनको बेसिकली ये बताने के लिए और उनको एनकरेज करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएँ कि आपकी स्टोरी क्या है? आप जहाँ हैं इस वक़्त, वहाँ आप कैसे पहुँची और क्या आपके साथ अच्छी चीज़ें, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको क्या मिली? और कोई ऑब्स्टिकल्स जो हों या कोई बुरा कोई वाक़या भी आपके साथ हुआ हो बीइंग अ वुमन स्पेशली, तो वो आप हमें बताएँ प्लीज़? सो जर्नी जो है, आई थिंक अगर मैं अभी पीछे देखूं, मतलब एट दिस पॉइंट, तो um, ऐसे लगता है जैसे सारा कुछ कनेक्ट, जैसे होता है ना कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, राइट? बट व्हेन यू आर एक्चुअली कवरिंग दैट जर्नी, देन द थिंग्स डोंट कनेक्ट, दे ऑलवेज कनेक्ट इन रेट्रोस्पेक्ट, राइट? तो जर्नी जो थी वो आई थिंक कुछ हैव हैज़र्ड भी थी, बट हर वक्त हमेशा जो है वो मैंने जितना कुछ भी किया है वो हमेशा कंटेंट से रिलेटेड था। ये वो एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा कॉमन थी। मतलब चाहे मैंने एक एडिटर के तौर पे काम किया मैगजीन में, चाहे मैंने ब्लॉगिंग की, चाहे मैंने कंटेंट राइटिंग की, अ, और अभी जो है वो ट्रेल ब्लेज़र है, वो भी कंटेंट है लोगों के लिए। अगर ट्रेनिंग्स हैं या आप कोर्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी कंटेंट है। तो वो जो कंटेंट वाला पार्ट है, वो हमेशा एक कांस्टेंट रहा है। लेकिन आई थिंक सिर्फ जो सिनेरियोज़ थे और जो रोल्स थे, वो चेंज होते रहे। लेकिन कंटेंट हमेशा, मतलब मेरे साथ जो है वो रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी, व्हिच इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। अम, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस जो था वो इसी चीज़ था, नॉट इंटेंशनली नहीं, बट आई थिंक बस कुछ ऐसे जो है वो डिज़ाइन हो गया। सो स्टार्टिंग द बिज़नेस, आई थिंक जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, तो उसका पर्पस जो था वो कुछ और था, राइट? अम, लेकिन आई थिंक जर्नी के साथ-साथ जो है वो जो उसका पर्पस है, वो भी थोड़ा-सा इवॉल्व हो गया। जिस तरह मतलब नई फिलॉसफी हो गई है कंपनी की, उस तरह से। अम, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा मतलब बेसिक जो सबसे पहली मोटिवेशन ये थी कि मैं इवेंचुअली जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मैं जॉब अपनी छोड़ दूँ, सो दैट मेरे पास अपना बिज़नेस हो, अपने क्लाइंट्स हों, ऐसे लोग हों, जिनके साथ मैं इंडिपेंडेंटली जो है वो काम कर सकूँ। तो आप जॉब अ, कर रही थी व्हेन यू स्टार्टेड योर बिज़नेस? येस, सो मैं जॉब कर रही थी जब हेलो में, उस वक़्त जो है आई थिंक हाउ मेनी इयर्स अगो वाज़ दैट? दैट वाज़ अ लॉट ऑफ इयर्स अगो। आई थिंक तकरीबन 5 साल पहले मेरे ख़्याल में। तो आप हेलो उस में वक़्त मैंने उसको काम करी थी एंड देन आप अपना काम जो है आपने घर से स्टार्ट किया। मतलब यू कुड मैंने वर्क अपना काम फ्रॉम होम। ऑनलाइन स्टार्ट किया। राइट। सो बेसिकली ये है कि मैंने जो सबसे पहला काम ज़िंदगी में करना शुरू किया था, वो मैंने करना शुरू किया था जब मैं 5th सेमेस्टर में थी अपने बीबीए के। अ, और वो मतलब सिर्फ मेरी पॉकेट मनी के लिए था। फ्रीलांसर पे जाके मैं जो है वो प्रोजेक्ट्स लेती थी और राइटिंग करती थी और आर्टिकल्स लिखती थी लोगों के लिए, दैट वाज़ आल्सो फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स। तो वो बिल्कुल पहला काम था, और इसलिए मुझे पता था कि मतलब अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप जो है बैठ के अम, दुनिया में किसी के लिए भी जो है वो काम कर सकते हैं। सो जब मैं हेलो में थी, तो मैंने यही सोचा कि मतलब ठीक है, मेरी फुल टाइम जॉब है, लेकिन मैं साथ-साथ जो है वो एक पार्ट टाइम 1-2 क्लाइंट्स ले लूँ। तो मैंने एक क्लाइंट से स्टार्ट किया, और उस वक़्त मैंने कंपनी नहीं रजिस्टर कराई थी, कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मतलब होता कैसे है, काम चलता भी है या नहीं, क्लाइंट की डिमांड्स, मतलब इट वाज़ लिटरली एन एक्सपेरिमेंट, राइट? राइट। सो 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो जानने वालों के साथ ही आई टोल्ड देम कि मतलब ये काम है, आप कराना चाहेंगे? सो अ फ्यू पीपल एग्रीड। तो उस तरह से जो है वो शुरू हुआ। सो उस वक़्त मोटिवेशन जो थी वो स्टार्ट करने की, वो ये थी कि इवेंचुअली मैंने
ये काम करना है, चाहे 1, 2, 3 साल लगे मुझे टू मूव कंप्लीटली टू दिस। और मैंने जो है वो मतलब इवेंचुअली पूरे लॉन्ग टर्म में मैंने जॉब नहीं करनी। तो उस वक़्त वहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जॉब छोड़ने के बाद अम, कंसल्टेंसीज़ करती रहती थी मैं और क्योंकि बिज़नेस जो है वो कंप्लीटली स्टेबल होने में तो बहुत टाइम लगता है कि आप लोगों को भी हायर कर सकें और आप अपने अपने आप को पैसे अगर ना भी दे सकें बट अपने पैसों के लिए यू हैव टू डू कंसल्टेंसीज़ और व्हाटएवर यू डू, राइट? सो मैं साथ-साथ कंसल्टेंसीज़ करती रहती थी और साथ-साथ जो है वो ये भी करती रहती थी। तो फिर बाद में जाके जो है वो आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू द बिजनेस एंड फोकसिंग कंप्लीटली ऑन द बिजनेस। और उसका ये है कि आई थिंक जर्नी जो है वो हर किसी की ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। लेकिन आई आई डू बिलीव कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात ना करें, अगर हम सिर्फ अर्बन एरियाज में जो खवातीन हैं उनकी बात करें या जो जरा सेमी अर्बन टाइप जगह हैं उनमें उनमें जो खवातीन हैं उनकी बात करें, जहाँ पे ऐसी फीमेल्स हैं जो एजुकेटेड हैं, जो डिजिटली लिटरेट हैं, आई थिंक उनके पास जो अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल है ना, अगर हम अपॉर्च्युनिटी की बात करें, अपॉर्च्युनिटी क्या होती है? आप ये देखते हैं स्पेशली फॉर अ बिजनेस, अपॉर्च्युनिटी ये होती है कि आप देखते हैं कि भाई अ, मेरे इर्द-गिर्द 10 लोग हैं, उनको जो है ना एक चीज़ ज़रूरत है, राइट? लाइक यू सी अ नीड दैट इज़ देयर एंड यू सी कि आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल है, ऐसा कौन-सा नॉलेज है, आपका क्या पैशन है, जो कि वो नीड को फुल उस नीड को फुलफिल कर सकता है, राइट? दैट इज़ ऑल अ बिज़नेस इज़ अबाउट बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट विल मेक यू मनी इन द एंड। तो अगर आप वो अपॉर्च्युनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, चाहे वो थ्रू द इंटरनेट आप सर्व करें कस्टमर्स को, इंटरनेट सिर्फ एक मतलब तरीका है व्हिच हैज़ मेड थिंग्स वेरी ईज़ी। चीज़ें बेचनी इंटरनेट ने बहुत आसान बना दी हैं। तो आई थिंक अब बिजनेस शुरू करना किसी के लिए भी डिजिटली इट्स वेरी इजी। देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर सेलिंग थिंग्स ऑन फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज एंड दे आर मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग अपने घर के पैसे जितने भी जिस तरह भी उनका वो होता है। आई थिंक एक जो मसला है विच आई हैव आल्सो सीन एंड एक्सपीरियंस्ड खुद से भी कि जो फॉर्मलाइजेशन है ना ऑफ फीमेल ओन्ड बिजनेसेस, आई थिंक इसकी वजह से इस चीज की वजह से फीमेल्स जो हैं उनकी प्रोबेबली एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स भी मौजूद नहीं है कि कितनी फीमेल्स हैं जो बिजनेसेस करती हैं या कैसे बिजनेसेस करती हैं, क्योंकि वो बिजनेसेस रजिस्टर नहीं कराती। अक्सर फीमेल्स के बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं होते, अगर रजिस्टर्ड भी होंगे तो कंपनी एक्टिव नहीं होगी, बैंक अकाउंट नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं। इन चीज़ों का मसला सिर्फ ये होता है कि आपने अगर अपना बिज़नेस बिल्कुल छोटा-सा रखना है ना, तो फिर तो ठीक है, फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने इफ यू वांट टू प्ले द बिगर गेम वेयर द मेन आर, यू नो, देन यू एक्चुअली नीड अ फॉर्मलाइज्ड बिज़नेस, जहाँ पे आपको जो है फिर वो रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि जी आप टैक्स पेयर हो, इतने साल से आपका ऑपरेशनल बिज़नेस हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स जो इस बात पे ना एंड में आके मार खा जाती हैं सॉर्ट ऑफ, वेदर इट्स फॉर ग्रांट्स, वेदर इट्स फॉर फंडिंग, वेदर इट्स फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने गवर्नमेंट के साथ काम करना है, अगर आपने किसी बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ काम करना है, एज व्हाटएवर बिजनेस यू डू, सो यहाँ पे आके ना एकदम से लाइक फुल स्टॉप काइंड ऑफ चीज, लाइक देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क हमेशा। um, और उसकी आई थिंक सबसे बड़ी वजह ये है कि खवातीन जो है ना वो रेगुलेशंस और पॉलिसीज को आई थिंक स्टडी करने में अ, उतनी अटेंशन नहीं पे करती जितनी जो है वो मेल्स जो हैं वो, बिकॉज आई थिंक इफ अ मेल स्टार्ट्स अ बिजनेस ना, वो जाके सबसे पहले अपना पेपर वर्क पूरा करा के आता है, मतलब दे दे आर वेरी क्विक एंड द थिंग विद फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है बेसिक जो ऑपरेट करने का तरीके का डिफरेंस है बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स, आई थिंक इज दैट males they keep talking to each other till they find the solution of the problem। मतलब वो जाके किसी से भी पूछ लेंगे कि जी अच्छा ये कैसे है, और एंड they're very action oriented and they take action very quickly। फीमेल्स का मसला ये है कि आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ फीमेल्स माइट नॉट एग्री विद मी ऑन दिस, नहीं, ठीक है, बट मतलब उसका यू आर टेलिंग प्रॉब्लम अस कि ये है आपने क्या कि देखा है एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू उसका नो। प्रॉब्लम हाँ, या सो उसका प्रॉब्लम ये है कि देयर इज सबसे पहले एक लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट द पॉलिसीज
राइट। आई डोंट नो व्हाई दैट इज, प्रोबेबली के क्योंकि मुश्किल होती है शायद, या देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द लीगल या शायद ये इंडस्ट्री। भी होता हो शहाब कि माइंडसेट जो होता है वो वी आर रेज्ड डिफरेंटली और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान हमारा कल्चर जो है उसके हिसाब से औरतों को रेज एक तरह से किया जाता है, मर्दों को एक्सपोज़र ज़्यादा होता द है। डिफरेंस इज कि आदमी जो है ना, जब बिजनेस शुरू करेगा तो वो प्राइस जो चार्ज करेगा ना, अगर वो 100 रुपए की बना रहा है, वो 10,000 की बेच देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? एंड फीमेल्स आर लाइक के बस गुजारा हो जाए। बिकॉज आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग अभी रिसेंटली, और मैंने उनसे पूछा कि आप प्राइसिंग करते हुए क्या फिलोसफी यूज करते हैं ना, मतलब कॉस्ट प्लस वट एवर मार्जिन, लाइक डिफरेंट मैं उनको पढ़ा रही थी प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स। तो दे वर लाइक बस गाइस प्राइस एंड गुजारा, बस गुजारा लिटरली। एंड देन आई वाज लाइक नो, दैट्स नॉट हाउ यू सेट प्राइस। आपको पाकिस्तान में मर्दों के साथ काम करती हैं आप और उसके काम करते वक़्त आपको कभी ऐसा फ़ील होता है कि आपको बिहेव औरत की तरह करना होता है, लेकिन एक्चुअली आपको सोचना मर्द की तरह पड़ता है in order to compete with everyone? सो आई थिंक नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई डोंट नो, प्रोबेबली आई थिंक आई ऑलरेडी डोंट थिंक लाइक अ यूजुअल फीमेल, आई थिंक। Compared to others मतलब यस, हम यस, उसका सोचें तो। आई थिंक सो, यस। हाँ, लेकिन उसका ये है कि मतलब इफ यू, बट आई हैव नेवर थॉट ऑफ अबाउट इट दैट वे, कि औरतें ऐसे सोचती हैं, बंदे ऐसे सोचते हैं, और मैंने ऐसे सोचना है, फॉर मी इट्स ऑलवेज लाइक, अगर आप एक बिजनेस ओनर है ना, तो आप एक बिजनेस ओनर है। देयर इज नो फीमेल बिजनेस ओनर एंड मेल बिजनेस ओनर, यू हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक इट वर्क, अगर आप एक प्रोफेशनल भी हैं, तो देयर इज नो मेल प्रोफेशनल एंड फीमेल प्रोफेशनल, राइट? यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनल. Professional is professional, right? You have to run a business. A business is a business. There is a primary difference between the way men run businesses and females run businesses, right? Females are known to be more like socially conscious, और वो social impact को भी देखती हैं, इर्द गिर्द के लोगों को भी देखती हैं, um, जो बाकी आपकी सोसाइटी की कंडीशंस होती हैं उनको भी कंसिडर करती हैं when they're running a business. Men don't necessarily do that, but um, the females are still running a business, and they're still probably thinking like, because there's no female or male way of thinking of profit or revenue. आपको compete तो Revenue is सबके साथ revenue. करना है ना? मतलब चाहे वो मर्द है या Exactly. औरत है। तो अगर आपने, एग्जैक्टली exactly, तो अगर आपने बिजनेस रन करना है ना, देन देयर इज नो फीमेल एंड मेल, यू हैव टू बी एट पार विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। उसका फिर वो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट माइंडसेट्स ऑफ द सराउंडिंग पीपल एज वेल, जो कि हमारे माइंडसेट्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक फीमेल्स जो है ना, वो आई थिंक उतना लेवल ऑफ ढिठाई जो एक चाहिए होता है ना, ऑफ रनिंग द बिजनेस, एंड वो आई थिंक देर प्रोबेबली, अगर वो ढीठ हों भी ना, और तो उनको आई थिंक वो एक्ट डिफरेंट तरीके से कर रही होती हैं। मेन डोंट केयर वेदर पीपल लाइक देम और नॉट, एंड उनको कोई मसला नहीं होता कि अगर वो कोई कुछ कह रहे हैं आपको, या अगर आप अ मेल वुड बी वेरी अग्रेसिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सेइंग कि जी ओ फलाना काम मैं आपको कर दूंगा। लेकिन अगर एक फीमेल वो ही काम उससे 10 गुना बेहतर भी कर सकती है ना, तो वो शायद वहीं बैठे हुए, उसी प्रोबेबली उस ग्रुप में बैठे हुए ये बात कभी नहीं बोलेगी कि मतलब आई कैन डू दिस फॉर दिस मच मनी। शी वुड प्रोबेबली रिड्यूस द प्राइस, और शी वुड प्रोबेबली नॉट स्पीक अप। तो आई थिंक वो जो एक थिंकिंग का है ना, दैट दे प्रोबेबली डोंट हैव इनफ वैल्यू टू ऑफर, और दे कांट compete with males. मेरा ख्याल है उसकी वजह साहब ये भी है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो रेज़ करते हैं अपनी लड़कियों को, तो वो इस तरीके से या आपकी जो सोसाइटी है वो भी प्रेशर्स डालती है इस किस्म के कि लड़की को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, उसको ऐसे बैठना चाहिए, उसको ऐसे खड़ा होना चाहिए, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहाँ हम्म। जाए, ये हो, वो हो। तो आई थिंक कि उसकी वजह से भी हम लोग बहुत सोचते हैं पहले कि मेरा कोई बिहेवियर जो है वो मेरे घर वालों को बुरा तो नहीं लग जाएगा या उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा या कोई उनको तो बातें नहीं सुनाएगा या इस तरह की बातें हम्म। काफ़ी सारी होती हैं। इसकी वजह से आई थिंक
लड़कियां या औरतें ज़रा थोड़ी-सी अ, सोच में पड़ जाती हैं कि मैं ये करूँ या मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, और क्योंकि उनको इतना एक्सपोज़र भी नहीं होता कई दफ़ा, तो कई दफ़ा बात करने में आई थिंक उनको मसला होता है, क्योंकि बाहर निकल के एक मर्द से बात करना अ, उनको एक्सपोज़र क्योंकि नहीं होता इतना, तो मेरा ख़्याल है शायद उनको कई लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती हो, डिपेंडिंग ऑन बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बैकग्राउंड क्या है, आपको किस तरह रेज़ किया गया, आपकी फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है, कितना एब्सोल्युटली, कंज़र्वेटिव आपकी फैमिली है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट आउट एंड इवन स्टडी फॉर सम पीपल. So I think, बिल्कुल। yeah, so you pretty much summed it up really well. So I'm just going to ask you my last question. Ke being a female, working in Pakistan, doing well for yourself, आप क्या कहेंगी लड़कियों को या कोई भी औरत जो काम करना चाहती हो पाकिस्तान में, घर में से निकलना भी अगर उसके लिए मुश्किल हो, तो क्या आप उसको एडवाइस क्या देंगी आप औरतों को कि वो क्या करें इफ दे वांट टू गेट आउट एंड वर्क? राइट। सो आई थिंक अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ, मतलब पिछले मार्च से अभी साल होने वाला है ऑलमोस्ट। इस टाइम के अंदर अ लॉट ऑफ बिज़नेसेस हैव इमर्ज्ड ऑनलाइन। मतलब वो प्राइमरीली इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू काम कर रहे हैं लोग, और उसमें बहुत सारी उसमें से जो है वो खवातीन हैं जिनकी शायद बहुत सारी मजबूरियां भी थी आई थिंक, कुछ लोगों की, मतलब मैं खुद जानती हूँ ऐसी औरतों को जिनकी जॉब्स थी जो कि कोविड की वजह से खत्म हो गई, और उन्होंने मजबूरन जो है वो कोई ना कोई बिज़नेसेस शुरू किए उन्हीं स्किल्स के साथ जो उनके पास ऑलरेडी जो है वो मौजूद थी। तो आई थिंक कि अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई किसी भी किस्म का नॉलेज है, अम, चाहे आप अच्छा खाना बनाते हैं, चाहे आप अच्छे कपड़े बनाते हैं, चाहे आप अच्छा लिखते हैं, चाहे आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कुछ भी हो सकता है। अम, एक तो फ्रीलांसिंग की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। दूसरा ये कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बाय द टाइम टिल द टाइम यू बिकम स्टेबल, क्योंकि अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आपको कुछ पैसे चाहिए ऑब्वियसली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। अम, लेकिन आई थिंक बिजनेस शुरू करना अब जो है वो आसान है देन आई थिंक इट वाज 5 इयर्स अगो। क्योंकि और दूसरी एक चीज जो मैं एडवाइस करूंगी आई थिंक वो ये है कि अपनी रिसर्च करें। मतलब और बिज़नेस इसलिए मत शुरू करें कि मैंने पैसे कमाने हैं या मैंने जो है, मतलब कमाएँ पैसे ऑब्वियसली, बट बिज़नेस को प्राइमरीली इस इंटेंशन से मत शुरू करें कि मैंने जो है वो पैसे कमाने हैं या मैंने जो है वो ये करना है, इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है? वो सब कुछ साथ आता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर आपका बिज़नेस जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा पहली बात, और अगर वो बिज़नेस जो है वो किसी नीड को नहीं फुलफ़िल करेगा ना, तो वो 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए उस कंटीन्यूअसली अपने इर्द-गिर्द जो दुनिया है उसको देखें, और दूसरी एक बात ये कि ये देखें कि और लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ डिफरेंट बनाती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बगैर ना आप अपनी प्राइस जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, ना आप अपनी एक्जिस्टेंस जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जब 10 बिज़नेसेस एक ही ज़रूरत पूरी कर रहे थे, तो फिर 11वें की क्या ज़रूरत है? राइट, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। तो और तीसरी एक चीज़ लास्ट वन कि रेगुलेशन जो है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ स्मॉल बिज़नेस आप जो है बेशक मत रजिस्टर कराएँ, लेकिन एट अ लेटर पॉइंट अ, आप जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि उससे आपकी प्राइसिंग भी अफ़ेक्ट होती है और आपके बिज़नेस की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी अफ़ेक्ट होती है और आगे जाके फंडिंग जो है वो भी अफ़ेक्ट होती है। सो यस। ठीक है। आई थिंक दैट्स वेरी गुड एडवाइस। तो इस तरह है गाइस कि मैं शहाब के सारे जो लिंक्स हैं, उनकी ट्रेल ब्लेज़र का लिंक, स्टार्टअप गाइड का लिंक, उनकी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर शहाब। You've given us some very valuable थैंक यू सो मच फॉर about. हैविंग मी, इट वाज़ ग्रेट। Thank you guys for watching, and I will see you next time. Bye bye.